Okay. Good afternoon to all the students. Our today practical is based on determine the dryness fraction of steam. Okay. So before going to start dryness fraction determination, so anyone can tell what is the dryness fraction? What is the dryness fraction? Anyone can tell? Yes, because this topic is over in theory lecture, so you have to explain what is the dryness fraction. So, dryness fraction is represent how much your stream is dry. Okay, the maximum value of dryness fraction is 1. If 1 is dryness fraction value is 1, then it meaning that this is the pure dry steam. There is no saturated steam content in particular amount of test stream. So dryness fraction is represented how much your steam is dry. So this is topic for today practical determination of dryness system and dryness fraction. Okay. So how we going to calculate? Okay. So maximum time the dryness fraction is represented by m dot. Okay, a small m and on the top there is a dot, m dot, that is the dryness fraction. And what is the value of dryness fraction? M is the mass, m is the mass. Okay, what is that mass? M is the mass. Okay, so the there is m equal to, there is a formula, m dot equal to fg plus x, fg plus x in bracket fg minus fs. Okay, where m is represented mass flow rate, where m is represented at mass flow rate, and fg is representation of the amount of steam which is in the gaseous form, the amount of steam which is in the gaseous form. Okay, and ms, ms is the amount of steam which is saturated, means water particle is available in that steam. Okay, so now the practical outcome from this practical is determination of dryness fraction of a given sample of steam by using separating calorimeter. Okay, so here the steam content water particle is called the wet steam, means which steam have contained the water particle we called it
wet steam. If there is no water particle, then this is the dry steam. Okay, so we can say that the dryness fraction is the measurement of ड्राइनेस ऑफ स्टीम, कि आपका जो स्टीम है, जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है फ्रॉम द बॉयलर, हाउ मच दिस स्टीम इज ड्राई, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्राइनेस, दैट परसेंटेज or that ratio represented by the dryness fraction. Okay, so in separating calorimeter, water particles are separated mechanically. The steam is allowed to strike on the hard surface, due to which water particles fall down. The steam is separated, collected in another chamber. The weight of water particle and steam are measured. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए, सेटअप है। तो इस सेटअप में क्या होता है कि स्टीम को इस पर्टिकुलर कैलोरीमीटर से पास कराते हैं, तो क्या होता है कि जो स्टीम है वो कैलोरीमीटर की वॉल्स पे स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने से क्या होता है कि जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो एट द बेस सेट हो जाते हैं, और जो ड्राई कंटेंट होता है वो आपका दूसरे चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है। तो जितना वाटर पार्टिकल का वेट है उसको मेजर कर लेते हैं, और जितना स्टीम, प्योर स्टीम, ड्राई स्टीम का है उसको मेजर कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है कि जो ड्राई स्टीम है उसका वेट आ गया, और जो वाटर कंटेंट है इन द स्टीम उसका वेट आ गया। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड? Experimental attempt to find the dryness fraction of steam generator which separating the calorimeter, steam generator equipped with the pressure and temperature gases. ठीक है, तो कैलोरीमीटर का सेटअप चाहिए और एक पर्टिकुलर स्टीम चाहिए जो कि स्टीम जनरेटर से जनरेट होगी, ठीक है ना। मेन इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड में क्या होता है कि जब क्लाउड में वाटर पार्टिकल, वाटर कंटेंट रहता है, तो वो क्या होता है कि जब वाइब्रेशन होता है ना, जब वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है कि जो जैसे क्लाउड आपका किधर जनरेट होता है, बंगाल की खाड़ी में, सारे क्लाउड बंगाल की खाड़ी से जनरेट होते हैं और पूरा ट्रेवल करके बंगाल की खाड़ी टू नॉर्थ जम्मू कश्मीर, फिर वो रिटर्न होकर के बंगाल खाड़ी में रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन इन बिटवीन उनका क्या कहते हैं कि जो भी रॉक्स हैं बहुत हाई, वहां से टकराते हैं। तो जब वो क्लाउड जनरेट होता है तो उसमें वाटर पार्टिकल्स बहुत होता है, तो धीरे धीरे टकराते 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 क्या होता है, स्ट्राइक करते हैं, और जितना वाटर कंटेंट रहता है वो क्या, आपका बारिश, रेन के फॉर्म में आपका अर्थ पे आता है, ठीक है ना। और फिर जो जितना भी वाटर पार्टिकल है वो रेन के फॉर्म में फॉल डाउन हो जाता है, और आपका रिमेनिंग जो स्टीम है, ड्राई स्टीम है, वो अगेन रिटर्न हो जाता है। फिर वहां से क्या होता है कि फिर उसमें वाटर पार्टिकल्स फिलअप होते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में क्या है कि वाटर बहुत ही ज्यादा है, और ये जो क्लाउड है, मैक्सिमम क्लाउड वहां पे ही जनरेट होता है। ओके, तो सेम थिंग्स कैलोरीमीटर में हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास स्टीम है, सैंपल स्टीम है, कैलोरीमीटर से पास कराते हैं। तो कैलोरीमीटर का जो वाल है वहां पे स्ट्राइक होकर के जो भी वाटर पार्टिकल है उसमें से रिमूव हो जाता है, वो बेस पे सेटल हो जाता है, और जो प्योर ड्राई स्टीम होती है वो अलग चैम्बर में
यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो एरो है, इस एरो के थ्रू जो ड्राई स्टीम होती है वो अलग चैम्बर में स्टोर हो जाती है। और ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये वाटर पार्टिकल्स है, वाटर है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि स्टीम में से वाटर और स्टीम, ड्राई स्टीम दोनों सेपरेट हो गई। तो जो सैंपल हमने लिया स्टीम का, वो कितना ड्राई है, यही मेजरमेंट करना, यही मेजरमेंट हमारा ड्राइनेस स्टीम और ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट द स्टीम जनरेटर, नोट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम जनरेटर, open the steam valve for few seconds and send the sample to the calorimeter। मीन्स स्टीम जनरेटर मीन्स बॉयलर को आपको ऑन करना है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि आपको वाल्व ओपन करना है, स्टीम वाल्व ओपन करना है, और वहां से कुछ सेकंड के लिए, तो मतलब उतने सेकंड में जितनी भी स्टीम पास ओवर होगी उसको हमको कैलोरीमीटर में सेंड कर देना है। ओके, मेजर मास ऑफ द कंडेंस्ड कलेक्टेड, कंडेंस मतलब जितना कंडेंसेशन होकर जो भी वाटर कलेक्ट होता है उसका मेजरमेंट करना है, मास का। और मेजर मास ऑफ ड्राई स्टीम सेपरेटली, ठीक है ना। तो आपका जो ड्राई स्टीम है वो सेपरेट हो गया, वाटर वो सेपरेट हो गया, दोनों का हमको मास मेजर कर लेना है, ठीक है। अब नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी देख लीजिए, नेम ऑफ रिसोर्सेज कहाँ से है, फिर उसके बाद मेक एंड डिटेल बोर्ड पे है कि आपने एक कितना अमाउंट, सम अमाउंट लिया, जिसमें से क्या कहते हैं कि कैलोरीमीटर में पास कराया, जिसमें से M1 इज द मास ऑफ ड्राई स्टीम एंड M2 इज द मास ऑफ सेपरेटेड वाटर। सो इसका अलग अलग मेजरमेंट यहाँ पे ले लिया, और ये आपका एक्चुअल प्रोसीजर है। देन ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या, प्रेशर बार मीन्स आपका जो बॉयलर है उसमें प्रेशर देखना है, मास ऑफ दी वाटर MW, ठीक है, कितना आया, मास ऑफ दी ड्राई स्टीम वो कितना आया, और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू MS डिवाइड बाई M प्लस W। S क्या है, स्टीम का मास, और W क्या है, वाटर का मास, और X आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टेबल में हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, कि X इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका स्टीम का मास है डिवाइड बाई वाटर मास प्लस स्टीम मास, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि आपका 10 kg स्टीम है ना, टोटल स्टीम कितना है, 10 kg है, और जब आपने उसको कैलोरीमीटर में सेंड किया तो आपका 6 जो है 6 kg वाटर आपको मिला और 4 kg स्टीम मिला, ठीक है ना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 10, and 4 divided by 10 means 0.4. 0.4 is the dryness fraction for the particular steam which we tested। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने 10 kg स्टीम लिया, उसको पास कराया, उसमें क्या कहते हैं कि हमको 7 kg स्टीम मिला और 3 kg वाटर मिला। देन क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3, 7 डिवाइडेड बाई 10.7, ठीक है ना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही स्टीम हमको ज्यादा गेन होगा, है ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब है उसमें ड्राई स्टीम का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है ना।
तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, ठीक है ना। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब जो स्टीम है वो ड्राई स्टीम है, टोटली ड्राई स्टीम है। और अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आ रही है, बिलो देन 1 और लेस देन 1, then it means the steam is wet steam where water particle is presented. Okay, अगर वाटर पार्टिकल स्टीम में है तो वो क्या होगा, आपका वेट स्टीम में आएगा, ठीक है। वॉट एवर द रिजल्ट जस्ट राइट डाउन कि आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे क्या दो दो है, ठीक है ना। जैसे आपने 10 बार पे एक स्टीम ले लिया, ठीक है ना, और फिर 15 बार पे एक स्टीम ले लिया, सेम अमाउंट लिया, है ना। तो जैसे प्रेशर आपका ज्यादा है, 10 बार है, 10 बार में मान लीजिए 0.4 ड्राइनेस फ्रैक्शन आया, और 15 बार पे 0.8 या 0.7 आया, तो वो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको राइट डाउन करने हैं। स्टेट लिमिटेशन ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का लिमिटेशन क्या है। ओके, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग एंड थ्रोडलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। जो थ्रोडलिंग कैलोरीमीटर है, यहाँ डिफरेंट टाइप के कैलोरीमीटर्स यूज होते हैं और अवेलेबल हैं। तो उसमें जो थ्रोडलिंग, जिसका थ्रोडलिंग मतलब गला, थ्रोड, ठीक है ना, तो वो बहुत ही नैरो होता है ना, तो उसको थ्रोडलिंग कैलोरीमीटर बोलते हैं। ओके, ठीक है। स्टेट फार्मूला टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ द स्टीम when it contained water particle, list application where wet steam is used, means आपका वेट स्टीम कहाँ पे यूज होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। कैलकुलेट ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर डिफरेंट प्रेशर, है ना। तो जैसे 10 बार पे लिया, 15 बार पे लिया, 12 बार पे लिया, 20 बार पे लिया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन आता है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। So student, right now I am showing a video where the dryness fraction is, calculation of dryness fraction is shown. So go through this video.
Okay, so student, you can see how we can calculate the dryness fraction for particular if problem is there. So we just need to calculate the dryness fraction. We need the mass of dry steam and mass of wet steam. Okay, so the mass of dry steam is denoted as ms and the mass of wet steam denoted as mw. Okay, so dryness fraction capital X or maybe somewhere it is represented as small x equal to ms divided by ms plus mw. Okay, so simple equation is here, and from this equation we can calculate the the dryness fraction. Okay, so students, there is any question from your side? If any question, then you can ask your question. Okay, so there is no any question. That's why. So your sixth experiment is completed, and you have to complete your sixth experiment of thermal engineering. And next on the we have to calculate the some next practical is based on the molar chart. So this practical we can use of molar chart for finding out the enthalpy of the steam. Okay, so we have to find out the enthalpy of the steam with the help of molar chart. So this experiment we will continue in the next session. So till here, if any doubt, then you can ask your question. Just I'm waiting. Any have doubt? So please ask your question. Okay. And one more announcement is that your some practical we perform with the help of VLab. Okay. Some practical we have performed with the help of VLab. Okay. For that we can use the method of VLab for conducting the session. Okay. So how are we going to calculate dryness fraction and entropy? These things we can discuss by the virtual laboratory. Okay. So